morning, teachers. Swami Vivekanand welcomes you all for a in-house training on the pedagogy of science by Mr. Om Prakash Das sir. Before starting with the in-house training, we will do the customary habit of lightening the lamp, for which may I call Sir Sanjeev and Sir Vivek to do the honors. The principal of this school, Swami Vivekananda, Sir Sanjeev, to come forward and speak few words to us, all of us. Good morning, teachers. Good morning, sir. So today's training part is pedagogy of science. We have our Das sir for doing the training, and I think this training you have done in Jharkhand Public School, Baliyapur. So I wish you all the best for the training, and to all the teachers. Training is just actually to equip yourself with the subject, with the various contents and the various tools which you will use further to clear the concept of the students. Teaching is just a process to make the students learn how to learn. We are not telling them something extra. We are just providing them information. That information is already present in the book. And now in the age of Google, all informations are available. The training part is just to boost you up so that you can build yourself like that you make the student as the trainer. When you teach a student and that student can teach the same topic to someone else, your teaching is perfect. I remember that when I used to be a student, I used to think that all I have learned. But when I used to write the exam, I used to get 70 or 80, never 100. Why not? Because we don't used to learn for concepts actually or to make others understand. We used to learn for marks. Therefore that lagging was there. Now when I became a teacher, when I started teaching, and when I solved a sum and I was looking at the student's face, they were looking, आपको लगा कुछ समझ में नहीं आया। I was feeling very ashamed. समझा ही नहीं पाए इसको. So then I started solving the sums, reading the books, each and every concepts, and then I just started teaching in front of the mirror. Very hard work I have done, and then slowly that concept build up, and then I used to make them learn. My teacher used to say that if you are having 1% lagging in the subject, then that will reach 30% lagging to the students. Because one question they will ask you, and if you are not able to answer them, then they will have lose interest in you. And then they will not listen you, automatically they will lose interest in that subject. So that is actually the basic which CBSE is trying to build up because of this national education policy. Because now totally it will be skill based. Totally it will be learning outcomes, learning objectives, all these things will be shared. Now we also as a principal have a lot of works now.
year, what are the plans I have to set for the school? How this national education policy is according to the what CBSE, the thing which CBSE has thought. So how we will move according to that thought. So we have to do lot of things. We are doing also training 50 hours. You are also doing 50 hours. We are also doing 50 hours. So training is just to equip you. And again, I would request you all that take more interest in training, and as per the things which I had discussed with the training coordinators of district training coordinators, there are many portals where a lot of trainings are being done online also. Wherever you get chance, you do the training. Even some US based trainings are coming, Australian based trainings are coming. You don't do those things. You don't know suddenly. Suppose it is not, you will think that this is not required for me, this is not required. But suddenly you will see that CBSE will suddenly select you only. If you have done that, if CBSE requires a resource person for that, CBSE will suddenly select you as that resource person for that. And your name will be highlighted in the national level. So you don't know when it is getting leaked. So whenever you are doing something, do something very sincerely. Okay. So once again, all the best. Thank you. Thank you, sir. Morning, sir. Then today you all are present here for attending the training. The topic given here, pedagogy of science. First of all, you have to understand that now, as our principals have told you that what was the importance of training in our life. We should never forget our mother and our childhood. From the childhood, the person starts to get training from the mother, from father. So as we get from that time only, the training starts. And as the topic it is given here, pedagogy of science, we have to understand that what is science and why it is important nowadays. So the word science, actually it is derived from a Latin word, scientia. That means knowledge. और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विज्ञान. तो अगर हम लोग इसको तोड़ कर देखें कि विज्ञान में छिपा क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, तो ऑटोमेटिकली सारा फैक्ट जो है समझ में आ जाएगा. बी अर्थ विशेष के लिए आता है और ज्ञान मैंने तो समझ लें. तो साइंस यानी विज्ञान वो शाखा है जिसमें कुछ विशेष, चाहे शिक्षित इंसान हो या अशिक्षित इंसान हो, सबको सीखने का मौका मिलता है. और इसका एप्लीकेशन हम लोगों के जन्म के साथ से ही स्टार्ट हो जाता है. सो इट्स वेरी important nowadays to make the total curriculum of education based upon science. We should not neglect it, because each and every day, each and every moment, we are just applying science, but we don't know. We are very unknown to it. If you will count your activities from early morning till late night before going to bed, you are applying it, but you don't know. So now, according to NCF, anybody can tell me what is the meaning of NCF, full form of NCF? National Curriculum Framework. Very good. From which year it has been implemented? 2005. Very nice. 2005. So, एक बार ताली हो जाए सब लोग. Well done, sir. So, framework, National Curriculum Framework. As we all are very lucky that we are teacher. Understanding? Yes. Many times we think that अरे कुछ नहीं मिलेगा तो टीचर बन जाएंगे. But be a teacher, it's very tough work. As we know that CBSE
is day by day increasing its parameter, and CBSE trying to engage each and every person, those who are teachers from the primary sections to the higher secondary sections, to attend the training. So the main motto of the CBSE is to make us a perfect teacher. But as we all know that be a perfect is a very tough work. So here some PPT will be shown to you, and we have to understand that what's the main motto of this training. So pedagogy, the term pedagogy, what is the meaning of pedagogy? Anybody can? पेडागोजी का मतलब क्या होता है? संतोष सर, पेडागोजी का मतलब? I don't know. पेडागोजी का मतलब यस बोलिए. How to teach. How to teach. Any more? Pattern of teaching. Pattern of teaching. अच्छा ठीक है. All right. सर आप प्लीज सुभाषित सर, पेडागोजी. It is the process by which the learner comes to know about different subjects. It is a process. Okay. देखिए एक शब्द में इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा शास्त्र. What it is? ये एक शास्त्र है. अंडरस्टैंडिंग. अब क्या किया है सीबीएसई में, सीबीएसई को या फिर दूसरे कोई बोर्ड का भी हम लोग नाम ले सकते हैं कि टीचर्स को सीटेट क्वालिफाई करना, तो उसमें आपको मैंने टीचर को एलिजिबल है कि नहीं वो चीज के लिए पेडागोजी को ओवरऑल लागू कर दिया गया है. तो पेडागोजी सिर्फ साइंस का ही नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी होता है. यस Yes, all subjects are integrated. यस ऑल सब्जेक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग. अब जो चीज वेरी कॉमन है जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सब में पेडागोजी को आज ला दिया गया. तो पेडागोजी ऑफ साइंस हम लोगों को अब ये बताएगा कि साइंस को कैसे करके हम लोग एजुकेशन सिस्टम में इनपुट करना है और उसका एप्लीकेशन, उसका क्या क्या फीडबैक. ठीक है. तो देखिए ये चालू है कि नहीं. Sir, pause. That means you are understanding. Yes, sir. Okay, no problem. So let us start again. That different thinkers they are giving the definitions of science different. And nowadays, a very common definition we can say that the subjects that let us to know either something is simple in the simple way or something is complex in the simple way. That means what is in front of us, surrounding us, if we are able to know that, that means we are very near to science. Understanding? So, as it is a very lengthy session, but we will be doing everything in short. So now let us start with some activity type. Suppose that how we will be just use the science in our teaching process or in our school to shape the curriculum और its application. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि क्लास में साइंस बुक चलेगा, है ना. उसके बाद पब्लिशर्स अपने अपने हिसाब से मसाला वगैरह लगा करके साइंस बुक हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है. उसके बाद फिर हम लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि एक लेसन प्लान जिसके मथे साइंस पढ़ा, अब वो क्या करता है कि सोचता है कि हमें उसी को साइंस पढ़ना है. नो, अप टू 10th लेवल you are the student of each and every subject and you have to maintain the dignities of each and every subject up to 10th level. If you are going to be a teacher in a secondary school or in a primary school, then up to 10th level you have to just make yourself that you are fit for each and every subject. Understanding? That if you will be obviously built up yourself from inside, then in any situations you will handle the condition. Otherwise, the problem will be till death when the persons are going to funeral ghat, whatever. वहाँ पर भी
क्या है, इस पेंडेमिक सिचुएशन हो गया है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हो रहा है कि लोग पूरा क्या हो गया, डिमोलाइज हो गए, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि सोच नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, नहीं करना क्या है। सो इन दिस वे ये थोड़ा टॉपिक से हट जा रहा है, बट अमॉन्ग देम वी द टीचर्स आर आल्सो, बट अ वेरी कॉमन मीन्स proverb means very common statement is there that जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, understanding. So as we all are the teachers, we have to be just think that in any situations we have to just present ourselves as a good teacher, understanding. So अब हम लोग थोड़ा सा ये चीज करेंगे कि किस तरह से हम लोग बच्चे पे या फिर एज ए गुड टीचर, एज ए साइंस टीचर, हम लोग साइंस को किस तरह से क्लास में या फिर इसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग. सो अ वेरी सिंपल थिंग, सपोज दैट ये एक पेपर है मेरे पास, अंडरस्टैंडिंग. तो इसके बाद समझ में आएगा कि हम लोगों को करना क्या है. जैसे ये एक पेपर है, ब्लैंक पेपर एंड इट्स फ्लैट, जस्ट इट्स लाइक अ स्टूडेंट, जैसा स्टूडेंट्स क्लास नर्सरी में आता है, जस्ट मान के चलिए कि इस पेपर के जैसा है. अब उस पेपर को अगर आप थोड़ा सा ऊंचाई से छोड़ दीजिएगा, पेपर कहाँ जाकर गिरा आपको खुद इसका पता नहीं था कि वो कहाँ जाकर गिरेगा, इट्स जस्ट फ्लॉप एंड देन ड्रॉप एनीवेयर, अंडरस्टैंडिंग. अब क्या होता है कि एज ए साइंस टीचर, आप अगर साइंस टीचर या फिर आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी पेपर को, दिस पेपर विल बी डन लाइक दिस. अब हम लोग उसको क्या किए, उस पेपर को थोड़ा सा एफर्ट लगाकर उसको एक शेप दे डालें, ठीक है. अब हम इसको गिराएंगे, हम इसको जहां गिराना चाहेंगे डेस्टिनेशन पर ही जाकर के गिरेगा. हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर या फिर 4-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में गिरे, लेकिन इट विल बी गोइंग टू दैट. सो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. दिस इज अ फ्लैट पेपर, ब्लैंक पेपर, and it is just rolled one, and I just compare that this is students those are coming in the nursery classes or the classes, the students these are, and this is after going from the school. So what is the work over here, यहाँ टीचर का रोल क्या होगा, anybody can tell me what we have just done from this. हम लोगों ने क्या किया, yes efforts लगा, very good. उसके बाद और उसमें कुछ फ्रेम किया स्टूडेंट, इसको फ्रेम किया गया. that means टीचर का फंक्शन ये होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह से ब्लैंक माइंडेड पर्सन है, दैट मींस द स्टूडेंट्स वी हैव टू गिव अ एफर्ट, वी हैव टू अप्लाई एन एफर्ट एंड वी हैव टू जस्ट रोल इट अप एंड मेक इट ए परफेक्ट पर्सन टू गो फॉर ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. अगर आप इतना कर पाते हैं, देखिए जस्ट हियर इज वी कैन सी दैट एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. ये बात किसने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, अंडरस्टैंडिंग. सो इस बात से ये तो मान लेते हैं कि किसी ने कह दिया, someone has said this one, then what should be our thought, what will be. हम लोग आज तक क्या करते हैं, जितना भी थीसिस हो, थ्योरी हो, फॉर्मूला हो, सबके द्वारा जो बना करके दे दिया गया उस पर हम लोग फॉलो अप करते जाते हैं. बट आवर मोटो शुड बी दैट समथिंग वी कैन डू द क्रिएटिव. हम लोग को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या कि आप अगर कुछ भी किए हैं, सबसे पहला आप एक मान लीजिए टीचर बने, यू हैव जस्ट बिकम ए टीचर, तो योर एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है, आपको बायो पढ़ाना है, आपको फिजिक्स पढ़ाना है, आपको मैथ पढ़ाना है. तो अब स्टूडेंट्स एज ए ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट कमिंग विद ह्यूमन बिहेवियर्स, एंड व्हेनेवर दे आर कमिंग इन अ पर्टिकुलर रूम विद बेंचेस एंड ऑल द व्हाटएवर सकते हैं, that we can do, understanding. So this type of, if efforts will be applied from the teachers, by the teachers, then obviously तब क्या होगा कि बच्चे को सबसे पहला तो वो एक कॉमन चीज हो गया. अब वहां पर जाने के बाद वो तरह तरह का क्वेश्चन अराइज कर सकता है,
कि इसमें सॉल्ट इतना ही क्यों डालते हैं मम्मी। अगर आप मान लीजिए घर में चावल लाते हैं तो शैक फुल शैक 25 kg और 50 kg का ला रहे हैं, सॉल्ट इतना ला रहे हैं, ऐसा क्यों ला रहे हैं। अब मान लीजिए मम्मी को तो ये पता है नहीं, मम्मी तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, इसलिए कहा गया कि इफ यू आर गेटिंग चांस यू शुड हैव टू विजिट समबडी एल्स एंड यू जस्ट लेट देम कि बेटा इसमें सोडियम क्लोराइड है, इट्स अगर सोडियम और क्लोरीन का अगर उसको उनको नॉलेज देना होगा तो वी कैन टेक दैट वन आल्सो, अंडरस्टैंडिंग। अब टर्मरिक पाउडर से भी हम लोग उसको कुछ भी, मतलब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज इन आवर डे टू डे लाइफ व्हाट इज गोइंग ऑन सराउंडिंग अस, व्हाट वी आर जस्ट सीइंग ऑब्जर्विंग, फ्रॉम दैट ओनली वी कैन टेक द पार्ट। और ये करना होगा आने वाला समय में, हम लोग जितना ज्यादा इतना ज्यादा हम लोग क्या हो जाएंगे, वी विल बी, अभी जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर बताया, इक्विपिंग मींस हम लोगों के पास मेनी थिंग्स विल बी देयर, इंफॉर्मेशन का कमी नहीं स्टूडेंट के पास, बट द प्रॉपर ट्रैक ओनली वी कैन मेक, हम लोगों को प्रॉपर ट्रैक बनाना है। अदरवाइज द सोसाइटीज वट एवर वी आर मेकिंग, आज हमारा जो देश है, हमारा देश क्या है, आवर कंट्री इज मल्टीलिंगुअल से भरा पड़ा है, मल्टी रेशनल है, मल्टी टैलेंटेड है, और कभी कहा जाए तो मल्टी करप्टेड है। सो अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं, उस देश में सोसाइटीज से देश बनता है, और सोसाइटीज इंसान से बनता है, और इंसान हम सब हैं। इफ वी आर जस्ट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ द नेशन, एंड इन दिस व्हेनेवर द मल्टी डायरेक्शनल थिंग्स कम्स, अगर मल्टी टैलेंटेड, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रेशनल एंड मल्टी करप्टेड कंडीशन आता है, तो देयर द पीपल्स, द छोटे छोटे बच्चे जो कल को जाकर के बड़ा कुछ जिम्मेदारी लेने वाले हैं, वो दे विल बी डिस्ट्रैक्ट, उनको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ऐसा होता है, बिकॉज आवर कंट्री इज लाइक दैट। दैट्स व्हाई देश की आजादी होने के बाद भी आज तक हमारा देश साइंस क्लास और साइंस क्लास रूम मिल भी, ठीक है। अब हम लोग सभी कोई अपने अपने साइंस क्लास रूम के बारे में सोचेंगे कि हाउ आवर साइंस क्लास रूम विल बी। तो सपोज दैट साइंस क्लास रूम, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है इन दैट स्लाइड, यू विल सी दैट व्हाट इट इज, व्हाट इट्स शोइंग, इट्स अ टारगेट। जस्ट हम लोग को जो भी है, एक टारगेट बीच में वो जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं आप, उसमें हम लोगों को जस्ट हिट करना है। सो देखिए क्या होता है साइंस क्लास में, क्या होता है देखिए, व्हाट इज रिटन देयर, टू बी क्वाइट एंड लिसन, टू कॉपी डाउन नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये कहाँ गया, सेंटर पे गया क्या पूरा, यानी आपके अगर क्लास में 70 बच्चे हैं तो सेंटर तक, यानी नोट डाउन करना ब्लैक बोर्ड से, सही सही सुनना, चुपचाप रहना, सब कोई नहीं करेगा। यू विल नॉट गो टू द सेंटर, मतलब देखिए ये पूरा सेंट्रलाइज नहीं होगा, यानी द चिल्ड्रन दोज हु आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट एक्सपेक्ट दैट यस each and every one are just doing the same work, it can't be, because we are from multi-rational, we can't neglect it, हम लोग मल्टी रेशनल कंट्री का है। रेश मैंने समझ में आ रहा हूँ हम लोग को, रेश आरशी जस्ट जेनेटिक इफेक्ट एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई द टारगेट इज नॉट गोइंग टू बी हिट। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, चलिए आ गया टू डू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। अगर एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या कि टू डू, अगर आपके मुंह से निकल गया कि यू डू योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, सब बच्चा हम लोग हाँ सर कल जरूर करके लाएंगे, अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो दूसरे सुधार लेकर के उसको कॉपी करके लाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बुक क्या है, टू डू ग्रुप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वन डे अ वीक ड्यूरिंग अ डबल पीरियड, ये टीचर के लिए है। दैट मीन्स आवर क्लासरूम में ये तीनों चीज अगर हम फॉलो अप करते चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने मिलेगा, और वी विल बी जस्ट कंप्लीटिंग आवर व्हाटएवर द सिलेबस, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब आगे देखते हैं, हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न साइंस। इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि नर्सरी का बच्चा, वेरी
very means we can say that blank minded, कुछ नहीं उसके दिमाग में। अब वो साइंस का मतलब वो क्या समझेगा एज ए टीचर, क्योंकि जब वो क्लास में आता है तो उसका टीचर ही सब कुछ हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग। तो उस छोटे से बच्चे के लिए, फॉर दैट स्मॉल किड, उसको साइंस कैसे करके हमें समझाना हो और वो साइंस को किस तरह से समझेगा। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक आवर activity based, our planning, our technique, centric, learner interpret and elaborate, that means whatever it is written, हम लोग थोड़ा इससे अलग है। अब थोड़ा सा बच्चा को उसको साइंस समझाना, कुछ नहीं है, उसका टिफिन खोलिए, you have to just open the tiffin box, you have brought the tiffin box here, वो सबसे पहले टिफिन बॉक्स आपको दिखाया। अब उस टिफिन बॉक्स से उस स्वीट बोलेगा, अब उसमें बोलिए कि इसमें तो स्वीट बोल के कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो ये स्वीट क्यों लग रहा है, इसमें क्या है? उसको पता नहीं कि उसमें शुगर होता है। शुगर को अगर सुना होगा तो बोलेगा कि शुगर। तब वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा जो भी मीठा चीज हम लोगों को खाने को मिलता है उसमें शुगर होता है, और अगर हम ज्यादा शुगर खाएंगे तो हमारा दांत भी खराब हो सकता है। तो मिस बोलिए ज्यादा शुगर नहीं खाना, ज्यादा बिस्किट नहीं खाना, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना। वहां से हम लोग शुगर वर्ड उसके माइंड में अगर डाल देंगे तो कल वो बच्चा 10th में अगर जाएगा तो शुगर समझना उसको इजी, he or she will understand the meaning of the sugar from there। अब वही शुगर का अगर आप फार्मूला क्लास 9 में उसको बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि शुगर जो मैंने नर्सरी क्लास में पढ़ा था आज उसका फार्मूला मैंने पढ़ लिया। अब अगर उस बच्चे को कुछ नमकीन चीज आप खिलाएंगे, बोलेंगे बच्चा इसमें क्या है, बेटा क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट का सीधा उसका मीनिंग समझ में आ गया, साइंस आपका स्टार्ट हो गया वहां से। अ स्मॉल चाइल्ड कल को जाकर के वो बच्चा अपने मम्मी से बोलेगा कि मम्मी इसमें शुगर होता है, इसमें सॉल्ट होता है। आपका टीचिंग सक्सेस, आपने उसको साइंस समझाना स्टार्ट कर दिया। सो बच्चा जिस तरह से समझना चाहे, in which way the child is ready to understand the science, you have to follow that, then you are a good teacher, otherwise you will be the ring master। तो हमें यहाँ पे टीचर बनना है, ना कि रिंग मास्टर बनना है। We will not be becoming a ring master। रिंग मास्टर क्या करता है, बड़ा सा लायन को जो कि जंगल का शेर राजा है उसको भी अपने हैंडल और रिंग के अंदर में रखना जानता है। बिकॉज you don't be a ring master, you be a teacher।